Very good afternoon to all of you. So let me recall and recapitulate my lecture, which I was deliberating in my previous class. We were discussing about contribution of Taylor and what are the principles that he presented in his scientific management theory. And today we shall talk about relevance and critical appraisal of Taylor. तो आज हम लोग बात करेंगे टेलर की प्रासंगिकता और उनके आलोचनात्मक मूल्यांकन पर। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखें, फिर हम लोग डिस्कशन करें। Taylor and his principles of scientific management टेलर और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन को are criticized on the following grounds. निम्न आधारों पर आलोचना का सामना करना पड़ता है। 1. Taylor is pro-capitalist. टेलर पूंजीवाद के समर्थक, who always talk about maximization of production and profit, जो हमेशा उत्पादन और लाभ बढ़ाने की बात करते हैं। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट और उनका वैज्ञानिक प्रबंधन seems to serve the interest of capitalist, industrialist and management only. केवल पूंजीवादी औद्योगिक घरानों और प्रबंधन के पक्ष में ही दिखाई पड़ते। Next, Taylor is against trade unions, टेलर श्रमिक संघों के विरोधी हैं। Who tends to destroy welfare and interest of the labor workforce, जो श्रमिक कार्यबल के हितों और विषयों के विपरीत हैं। and harm their power of collective bargaining through trade unions. और श्रमिक संघों के जरिए जो वे सामूहिक सौदेबाजी कर सकते हैं
टेलर उसे ध्वस्त करते हैं। नेक्स्ट, रॉबर्ट हॉक्सी, रॉबर्ट हॉक्सी, ओलिवर शेल्डन, मैरी पार्कर फॉलेट, एल्टन मेयो, and Peter F. Drucker. And other such scholars और इनके ही जैसे विचारक say that, कहते हैं कि Taylorism only deals with the mechanical and not the human aspects of production and organization. टेलरवाद केवल उत्पादन और संगठन के यांत्रिक पक्ष को स्पष्ट और प्रतिपुष्ट करता है, जिसमें मानवीय और भावनात्मक तत्वों की उपेक्षा की गई। Harry Braveman, in his book Labor and Monopoly Capital, अपनी पुस्तक लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल में लिखते हैं कि Taylorism resulted in separation of worker from the knowledge. टेलरवाद में श्रमिक को ज्ञान से अलग कर दिया गया। And linked only to production and profit, तथा केवल उत्पादन और लाभ से जोड़ा गया।
and his principle of separation of planning and execution और उनके नियोजन तथा क्रियान्वयन के सिद्धांत में माइंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द हैंड। भुजाओं को ही मस्तिष्क से अलग कर दिया, विच मीन्स, जिसका अर्थ है workers have no role in planning, नियोजन में श्रमिकों की कोई भूमिका नहीं, neither there is any role of planners in working. और नहीं श्रमिकों के क्रियान्वयन में नियोजनकर्ताओं की कोई भूमिका है। एंटोनियो ग्राम्स्की has said in his book Americanism and Fordism ने अपनी पुस्तक अमेरिकनिज्म एंड फोर्डिज्म में कहा है कि Taylorism produces a gap between manual labor and the human content of work. टेलरवाद कार्य के मानवीय पक्ष और श्रमिकों के बीच में दूरियां पैदा कर देता है। As if workers are only motivated through economic incentives, और ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिक केवल आर्थिक कारकों से ही उत्प्रेरित होता है, and he has no other social, physical or emotional needs. और उसकी अपनी कोई अलग से सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक आवश्यकताएं नहीं होती। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं,
The critics also say that आलोचक ये भी कहते हैं कि his principles of scientific management उनके वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत is applicable only to production and manufacturing industries. केवल उत्पादन और विनिर्माण इकाइयों में ही लागू हो सकते हैं। and not to other sectors of economy. तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में वे उपयोगी नहीं। Hence, these principles are not uniformly and universally applicable. अतः उनके सिद्धांत सार्वभौमिक और एक समान रूप से क्रियान्वयन योग्य नहीं। All these critiques are only half truth. ये समस्त आलोचनाएं मात्र अर्ध सत्य हैं। Because Taylor has given full emphasis upon time, motion and fatigue study. क्योंकि टेलर ने समय, गति, थकान अध्ययन पर बल दिया। He has suggested to give intervals during the long working hours. उन्होंने लंबे कार्य घंटों के लिए बीच में विश्राम दिए जाने की बात कही। And he tried to maintain an equilibrium between the interests of management and workers both. और उन्होंने प्रबंधकों और श्रमिकों दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। That is why he said, और इसलिए उन्होंने कहा कि workers should be given share in the profit. श्रमिकों को लाभ का बंटवारा मिलना चाहिए। And in return, workers should not go for lockdown, strikes, demonstrations and processions. और इसी के साथ उन्होंने श्रमिकों को हड़ताल, धरना, प्रदर्शन
इत्यादि करने से मना किया। He exhorted for mental revolution. उन्होंने मानसिक क्रांति का आह्वान। He talked about management by exception. उन्होंने अपवाद प्रबंधन के बारे में चर्चा की। And that is why even today, और इसलिए आज भी almost all his principles, उनके सभी सिद्धांत are practiced, व्यवहार में अपनाए जा रहे। टेलर प्रथम चिंतक है। टेलर इज द फर्स्ट स्कॉलर जो श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण की बात करते हैं। Who talks about selection of workers on scientific basis and their training. The 9 essential qualities which is required for a successful worker. नौ आवश्यक गुण जो एक सफल कार्मिक के लिए आवश्यक है। Skill, education and knowledge are 3 of them. उनमें से 3 कौशल, ज्ञान और क्या मैंने बोला, शिक्षा, उनमें से 3 है। What new education policy 2020, जो नई शिक्षा नीति 2020, स्किल इंडिया मिशन, कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन, फ्रीडम ऑफ वर्क, कार्य की स्वतंत्रता,
परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन, प्रोडक्शन बेस्ड वेजेस, उत्पादन आधारित भत्ते, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, संविदाकरण, एटसेट्रा इत्यादि which are trying to be implemented at present, जिन्हें वर्तमान में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। Taylor has already talked about these things more than 100 years ago. टेलर ने 100 वर्ष पहले ही इन सभी की घोषणा कर दी थी। Thus he was a far-sighted visionary. अतः वह एक दूरदृष्टा थे। Who had the ability to foresee the future. जिनके पास भविष्य का अनुसंधान करने की दृष्टि थी। आफ्टर 1990s, 1990 के बाद the new reform and reorganization movement that took place in government bureaucracy सरकारी नौकरशाही में जो नया सुधार और पुनर्गठन आंदोलन प्रारंभ हुआ, इट इज टर्म्ड एज नियो टेलरिज्म। उसे नव टेलरवाद की संज्ञा दी गई। Because like in his scientific management theory, क्योंकि जैसा कि उनके वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में कहा गया था, that science of work should be developed, कि कार्य के विज्ञान का विकास होना चाहिए। Workers should be selected on scientific basis. कार्मिकों को वैज्ञानिक आधार पर चयनित होना चाहिए। Only trained and skilled, educated and technically sound workforce, केवल कौशल युक्त,
प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष कार्यबल ही मेक एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल, संगठन को सफल बना सकते हैं। All these things are trying to be achieved. In administrative reforms after 1990s. नब्बे के बाद प्रशासनिक सुधारों में इन्हीं सबको प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। That is why it is termed as neo-Taylorism, और इसलिए उसे नव टेलरवाद की संज्ञा दी गई। Hence to say that, अतः यह कहना कि टेलर was anti-labor and pro-capital, टेलर श्रमिक विरोधी और पूंजीपतियों के पक्षधर थे। is not true at all. वह सत्य नहीं। Rather he called spade a spade. He called spade a spade. S-P-A-D-E A again S-P-A-D-E, बल्कि उन्होंने सत्य को सत्य कहने का साहस दिखाया। And opposed what was wrong in the management side or the worker side. और उस सब का विरोध किया जो गलत था, फिर चाहे वह प्रबंधकों के द्वारा हो या श्रमिकों के द्वारा। कोई शक कोई शक। पॉइंट क्लियर। ये बात जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में केवल ह्यूमन वैल्यूज, सेंटिमेंट्स, इमोशंस पर ध्यान दिया गया, उतना और केवल वही बात टेलर ने नहीं की। लेकिन यह कहना कि पूरी तरह से ह्यूमन एलिमेंट को निग्लेक्ट कर दिया, यह भी गलत है। तो जब ह्यूमन रिलेशंस थियरी वाले लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स दिए तो उन्होंने प्रोडक्शन और प्रॉफिट को कम इंपॉर्टेंस दी। वर्कर्स इंटरेस्ट, ह्यूमन बॉन्डिंग, गेट टुगेदरनेस, आपसी मेलजोल, भाईचारा, वैल्यू सिस्टम,
इनफॉर्मल रिलेशंस, अनौपचारिक संबंध, सोशल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द वर्कर्स, श्रमिकों की सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताएं, उन पर ज्यादा जोर दिया मानव संबंध सिद्धांतवाद। तो वैसा एक पक्षीय बल या जोर टेलरवाद में नहीं दिखता है, लेकिन टेलर ने पूरी तरह से श्रमिकों की अनदेखी कर दी, उनके हितों की कोई चिंता ही नहीं की, उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा, ये कहना भी गलत है। बल्कि उन्होंने प्रबंधन और श्रमिकों दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया, और जो भी गलत है उसको कहा यह गलत है, जो सही है वो सही है। तो उन्होंने मैनेजमेंट से कहा आप प्रॉफिट में हिस्सा दीजिए, और वर्कर से कहा कि आप ट्रेड यूनियन और स्ट्राइक और ये सब छोड़िए। ये कहना कि टेलर ने ह्यूमन रिलेशन थियरी वाले लोगों की तरह से ह्यूमन एलिमेंट्स को क्यों एम्फेसाइज नहीं किया, ये कुछ उस तरीके का तर्क है कि नियोलिथिक एज वालों ने कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हर आइडियोलॉजी, हर विचार धीरे धीरे ग्रो करके एक लेवल पर पहुंचता है। जिस तरह से जब हम और आप जन्म लेते हैं तो एक छोटे से बच्चे, एक शिशु के रूप में हम शुरुआती दौर में तो करवट बदलने के लिए, उठने बैठने के लिए भी अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, और धीरे धीरे पहले घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे खड़े होना सीखते हैं, फिर खुद चलने लगते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो टेलरवाद जब आया तो दरअसल उस समय संगठन के सिद्धांत अपने प्रारंभ होने की शैक्षणिक अवस्था में, शिशु अवस्था। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ाने की बात जरूरत महसूस की गई, तो जरूरी था पहले प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बनाए जाएं, पहले एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम तो क्रिएट किया जाए, पहले इस तरीके से सेट ऑफ रूल्स तो बनाए जाएं जो मौजूदा ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। और फिर धीरे धीरे एक स्टेज वो भी आएगी जब एक आपके पास स्ट्रक्चर डेवलप होगा, फ्रेमवर्क तय होगा, नेटवर्क बना होगा, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रूल्स, रेगुलेशन सब तय किए जा चुके होंगे, तब वर्कर्स डेवलपमेंट की भी बात होगी। So if you wish to reach the highest, you have to start at the lowest. You can't jump suddenly to the topmost position. तो आज जब आप अपने समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो इसका डेवलपमेंट होने के पहले कंप्यूटर साइंस का डेवलप होना जरूरी था। उसके पहले ये 1950s 60s से शुरू होते होते फिर आज 2020 में, 22 में, 23 में आप इस लेवल पर पहुंचे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं। So like an individual, like a person, like a human being, every idea also takes its time to grow, evolve and become mature. तो जो बर्थ ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स की क्लासिकल थियरी में हुई, उसका फिर ग्रोथ और इवोल्यूशन ह्यूमन रिलेशंस थियरी में हुआ, और फिर उसका एक्सट्रीम डेवलपमेंट बिहेवियरल थियरी में हुआ, जिसमें कि आप एक बैलेंस्ड और मैच्योर व्यू पाते। इज दैट वेरी क्लियर? अब
तो प्राइवेट सेक्टर में जो मिल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर भी उसी को अपना रही है, कारपोरेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर की तरह एफिशिएंसी पर बल दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पर बल दिया जा रहा है, लेटरल एंट्री की जा रही है। सरकार ज्यादा से ज्यादा अब अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में आउटसोर्सिंग कर रही है, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन के आधार पर भर्ती हो रही है कि भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, काम अच्छा करोगे तो आगे बढ़ाएंगे वरना बाहर। अब सरकारी कर्मी और अधिकारी भी समझ रहे हैं कि मतलब अब वो दिन गए कि आप 12 बजे दोपहर में दफ्तर पहुंच रहे हैं और 1-1:30 बजे लंच का टाइम हो जा रहा है और 4 बजे तक लंच ही चल रहा है और 5 बजे चल दिए कि टाइम खत्म। अब नहीं चलेगा। पहले गवर्नमेंट जॉब को माना जाता था मतलब सरकारी सेवा मतलब कोई काम नहीं करना है, बैठे बैठे तनख्वाह। अब आप पूछिए किसी सरकारी कर्मचारी से आज के दौर में, वो चाहे सचिवालय में हो, चाहे बेसिक टीचर हो, चाहे वो क्लास 4 एम्प्लॉय हो, चाहे वो आईएएस अफसर, जो भी जिस फील्ड में जिस लेवल पर जिस भी जगह काम कर रहा है उसके ऊपर उतना ही वर्क प्रेशर है और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कोई आराम से बैठ करके दिन में 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम किया और बाकी महीने की तनख्वाह ले ली, अब ये संभव नहीं है। अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है, सीसीटीवी से लगातार आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, बायोमेट्रिक से आपकी अटेंडेंस हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। आप जहां पर हैं वहां हैं कि नहीं, वहां से आपका अफसर कहता है कि मुझे व्हाट्सएप कॉल करके दिखाओ। सरकारी स्कूल के टीचर हों, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हों, वो अपनी जगह पर काम पर मौजूद हैं कि नहीं, सीधे नजर रखी जा रही है टेक्नोलॉजी के जरिए। ये सब जगह पहुंच गया। अब हर जगह लिखा रहता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। न भी हो लिख दीजिए तो आदमी थोड़ा सतर्क हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप बस गए और आराम से महीने की तनख्वाह ले रहे हैं और कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। अब वो दिन गए। अब तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर 17 घंटे 18 घंटे काम करते हैं अपने स्टेट और अपने देश में। So the authority is not a bed of roses. It comes with whole lot of responsibility. The higher you are in the rank, the higher the responsibility and the stakes are. सड़क पर एक ट्रक को रोककर 100 रुपए का रिश्वत लेने वाला सिपाही का वीडियो वायरल होता है तो उतनी खलबली नहीं मचती जब एक एसपी 10 लाख का रिश्वत मांग रहा है, 20 लाख का रिश्वत मांग रहा है, जो डायरेक्ट आईपीएस अफसर है, तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। हो तो रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन खुलेआम इस तरीके से वीडियो वायरल हो जाए तो आपका बचाव करना मुश्किल है और आपका एक्सप्लेनेशन देना भी मुश्किल है कि साहब हम तो हंसी मजाक कर रहे थे और मतलब यूं ही हमें क्या पता था ये सीरियसली ले लेंगे। और ये बहुत संभल के और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना है और जितना बड़ा आपका पद है उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारी है और उतना ही ज्यादा आपका दांव पर लग जाता है। इज दैट वेरी क्लियर? तो इस तरह से टेलर पर हम लोगों ने बातचीत समाप्त की और हमारे जो अगले स्कॉलर हैं वो भी क्लासिकल थियरी में है और उनका नाम है हेनरी फेयोल। तो
इन पर चर्चा कल कर, ठीक है।